Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra, which has been traversing through Assam and currently is in West Bengal. Let's tell you about what all has been happening. The raging political war of words that happened in Assam between the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Rahul Gandhi. Even as his yatra has now entered West Bengal, there is no end to the firing of barbs from both sides. Himanta Biswa Sarma, who continues to target Rahul Gandhi and his yatra, which entered Assam on the 18th of January, saying that it is not Nyaya Yatra but a Mia Yatra, saying that he was deliberately entering where there is a minority population. Let's also listen into attack first before we get to the more recent attacks that have been made by the Assam Chief Minister. अब हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, जो असम के मुख्यमंत्री, वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी पर। उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो जानबूझ के कम्युनल टेंशन खड़ी करना चाहते हैं। और उसी दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, यानी कि 22 जनवरी को, उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से ही ज्यादातर गुजरती हुई नजर आ रही है और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। वहीं पर एक और आरोप लगाया गया हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि आखिरकार जो राहुल गांधी दिख रहे हैं वो है नहीं, मतलब वो बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के हवाला देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बस के अंदर होते और बस के ऊपर उनका कोई बॉडी डबल बैठा होता है। तो ये यात्रा क्या यात्रा था, और यात्रा का समय देखिए। असम में एक बहुत बड़ा कम्युनल क्लैश खड़ा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। गुवाहाटी में तो उनका एक झलक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उनका बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में असम से गुजरे और असम में बहुत बड़ा क्लैश हो जाए। असम इज ए स्टेट विद 40% मुस्लिम पॉपुलेशन। अब कितना सेंसिटिव है। अयोध्या का जो दिन में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, he came through a district like Nagaon, Morigaon, where 60% population belongs to religious minority. तो हमारा ऊपर उन्होंने कितना बड़ा प्रॉब्लम डाल दिया। Why you have chosen those few days in a communally sensitive state like Assam? मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट। और लोकसभा चुनाव का बाद उसको हमने अभी तो हम नोटिस वगैरह देगा। राहुल जी को हम लोकसभा चुनाव का बाद ही बुलाऊंगा, नहीं तो थोड़ा हमारा लॉस भी होगा ना। ही इज द बिगेस्ट एसेट ड्यूरिंग द इलेक्शन फॉर अस। Well, meanwhile, in response, Congress has time and again has called Himanta Biswa Sarma as HBS and the most corrupt chief minister. But after these fresh allegations of Rahul Gandhi using a body double, Congress has come up with a two-pronged response. It tweeted a picture of Prime Minister Modi with his shadow appearing on that on Adani, captioning that the post of body double. Meanwhile, Karnataka Congress also mocked Himanta Biswa Sarma and shared a picture of a flight ticket from Guwahati to Bengaluru for the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Congress party has asked Himanta Biswa Sarma to come to Bengaluru for treatment at the world-famous Nimans. Sorry for the Chief Minister. He is under a lot of stress. The fact that he is the most corrupt Chief Minister in the country has now become widely public in national media. And now in his press conference, he also said that he is seeing 2 Rahul Gandhis. So I feel very sorry for him. He must be suffering under a lot of stress. I advise him to go to the Guwahati Medical College Hospital tomorrow and get a checkup. I hope he's not consumed anything hallucinogenic by mistake, because he's seeing two Rahul Gandhis during the day. But nonetheless, this is a tactic to divert and distract from the main issues of the Bharat Jodo Nyaya Yatra. ऐश्वर्या हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, फिलहाल उनके पास जाते हैं। ऐश्वर्या, गुड मॉर्निंग। ये आरोप और प्रत्यारोप दोनों कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच लगाया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन और भी मुकदमे लग सकते हैं उन पर।
बिल्कुल, इस सब की शुरुआत हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मियां यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है जहां पर मुसलमान लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि जिस जगह से असम में वो गुजरना चाहिए था, उनको वहां से नहीं गुजरे। उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बयान सामने आए थे। कर्नाटक कांग्रेस ने एक टिकट भी कराया हिमंता बिस्वा शर्मा का, बेंगलुरु के मेंटल हॉस्पिटल में उनकी लिए एक बेड बुक कराया है, और ये उस पूरे बयान का रिप्लाई था जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी के अंदर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी बयान वो दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज के हों या फिर उनको कहा जा रहा हो कि असम के अंदर किस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स को ज्यादा जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं इस देश के। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से लगातार चार्जेस लगाए गए थे राहुल गांधी के खिलाफ कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जिस तरीके से वहां पर वायलेंस फैलाई, वहां पर ट्रैफिक के नियमों को बाधित किया। उसके बाद एफआईआर भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई है, और जो लीगल ट्रबल है उसको देखते हुए आगे बढ़ा। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर इस पर बयान आया था कि पहले से ही सारी परमिशन ले ली गई थी, उसके बाद ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उन क्षेत्रों से, उन रास्तों से गुजारा गया जहां से उनको पहले से ही सारी परमिशन थी। बहुत सारे बयान जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अब क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वेस्ट बंगाल की तरफ कूच कर गई है, इसके बाद अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक डबल रोल की भूमिका में है। वहां पर भी जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, जो क्राउड उनको नजर आया वो सिर्फ उन इलाकों का है जहां पर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है असम की वो ज्यादा दिखाई दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले चुनावों के अंदर असम के अंदर लोकसभा में कांग्रेस को पहले से भी कम सीटें मिलेंगी, और इस बात की गारंटी वो देते हैं। जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से हमला काउंटर अटैक किया जा रहा है उसके बारे में भी जरा बताएं, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी ऐश्वर्या चैलेंज करते हुए नजर आए कि कितनी भी एफआईआर करनी है, कितने भी मुकदमे दर्ज करने हैं, कर दिए जाए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं, जितनी भी एफआईआर्स आपको हमारे खिलाफ करनी है वो कर दें, जितने भी पुलिस केस आपको हमारे खिलाफ करने हैं हम कर दें, लेकिन ये यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। और हिमंता बिस्वा शर्मा अगर हमारे खिलाफ केसेस करना चाहते हैं तो वो करते रहें, लेकिन हम आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लोगों का जो प्यार है वो उनको दिखा असम के अंदर, उससे साफ ये साबित होता है कि आने वाले चुनावों में असम के अंदर कांग्रेस की सरकार वापस से आएगी। और उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री देश का भी बताया। कांग्रेस की तरफ से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि जब सारी परमिशंस ले ली गई थी तो आखिर क्यों नहीं उन जगहों पर उन्हें जाना दिया, उनको रोका क्यों गया। तो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से लगाया जा रहा है, यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री असम के। धन्यवाद आपका।